Hello student, today we are going to start part number 2. The chapter name is Evelyn Clanny. Listen to the sound without hearing it, and the chapter name is The Sound of the Music. This is the second chapter of the book Beehive. In previous video we have already completed about 5 paragraphs of this chapter, and today we will start from 6th paragraphs of this chapters. Now we start the video. First of all, I would like to tell you that this is story is about a deaf girl who was completely deaf from the age of 10 and 11 years, but she was very talented in music and played the music very well, and famous her name in the world of the music. Now let's start the chapter. And for all this, Evelyn would not accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. This paragraph I have already taught you in previous video. Today we start in the next line. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hours discussion, she never missed a word. Man with a bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips by leaning against the drums. She can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. Not surprisingly, Evelyn delighted her audiences. In 1991, she was presented with a Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. She's master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. ये बहुत ही अचंभित करने वाला था, बहुत ही उत्सुक करने वाला था, बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ थी कि एवलिन बिना सुने किस तरह से म्यूज़िक को बजा लेती है और इतना बेहतरीन तरीके से, इतना परफेक्ट तरीके से उस म्यूज़िक को बजाती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, कोई व्यक्ति बता रहा है कि हमारा और एवलिन का 2 घंटे का डिस्कशन हुआ। In our 2 hour discussion,
शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और उस 2 घंटे में उसने एक भी शब्द को मिस नहीं किया। जैसे मैंने जो शब्द बोला उसको भले ही सुनाई नहीं देता था, लेकिन उसने उस चीज़ को समझा और आराम से बात की। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बिना सुने सारी बात समझ रहा हो और आप जो बोल रहे हैं वो उसका जवाब दे रहा हो, लेकिन एवलिन ऐसी थी। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। मैन विथ बुशी बियर्ड, एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी थोड़ी सी घनी थी, बड़ी सी दाढ़ी थी। बियर्ड, बियर्ड मीन्स क्या होती है? दाढ़ी। अ मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, उसने थोड़ा सा मुझे परेशानी में डाल दिया। शी लाफ्ड, वो हंसती है और बताती है अपनी बातों में कि एक व्यक्ति था, या जिससे भी बात कर रही थी वो एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी थी, उसने मुझे थोड़ी देर के लिए मुश्किल में डाल दिया। वो इस बात को हंसकर कहकर बताती है, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये सिर्फ वो होठों को ही नहीं पढ़ती थी कि बस वो होठों को पढ़ के ही जवाब दे देती थी। इट्स द होल फेस, बल्कि वो पूरा चेहरा पढ़ती थी और उस चेहरे को पढ़ के ही जवाब देती थी। स्पेशली द आइज़, और ख़ासकर आँखें। आँखें सब कुछ बोलती हैं, बिन बोले बहुत कुछ बोल जाती हैं। शी स्पीक फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, फ्लोलेसली बोलती थी, लेकिन कौन सी भाषा के साथ? स्कॉटिश, स्कॉटलैंड की जो भाषा है उसकी झलक उसकी बातों में दिखती थी। स्कॉटलैंड का लिटरेचर उसकी बातों में दिखता था और फ्लोलेसली बोलती थी वो। माई स्पीच इज़ क्लियर, और बताती है कि मेरी स्पीच इस वजह से साफ़ है, इस वजह से क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, इसलिए मैं इतना फ्लोलेसली बोल पाती हूँ, इतना मैं अच्छे से समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं 11 साल तक तो सुन ही पाती थी। 11 साल तक तो वो सुनती थी, जब सुनती थी तो उसकी जो भाषा थी, जो बोलने का तरीका था, वो बहुत अच्छा हो गया था। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानी, लेकिन 11 साल तक अपनी स्कॉटिश भाषा को सुनने के बावजूद फिर उसने कैसे फ्रेंच भाषा को और जापानीज़ भाषा को कैसे सीख लिया, जबकि 11 साल तक वो स्कॉटिश सुनती थी। फिर भी उसने अच्छी मास्टरी, बहुत अच्छे से उस भाषा को जानती थी, फ्रेंच को और जापानीज़ भाषा को, 2 भाषाएं उसको बहुत अच्छे से आती थी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, और यहाँ म्यूज़िक की जब वो बात करती है तो वो बताती है कि म्यूज़िक जो है उसके जीवन में जैसे किसी ने उड़ेल दिया हो, उतार दिया हो। इट पोर्स, पोर्स उड़ेलना, डाल देना। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट, बॉडी के एक एक कण में, ऑफ माई बॉडी, बॉडी के एक एक कण में किसी ने म्यूज़िक पोर कर दिया हो, उड़ेल दिया हो, उसके अंदर भर दिया हो। इट टिंगल इन द स्किन, खाल के छोटे छोटे जो रोम्स होते हैं वहाँ से किसी ने उसको उसकी बॉडी में म्यूज़िक का प्रवेश कर दिया हो, यानी उस चीज़ को फील करना, अपना बना लेना, अपना समझ लेना। जिस तरह से जब हम स्टडी करते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते जाएं, बड़ा इंटरेस्ट आता है उसमें, क्योंकि आपका मन करता है उसको और वो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगने लगती है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो कह रही है कि म्यूज़िक जो है उसकी रोम रोम में, उसकी बॉडी के एक एक कण में, एक एक चीज़ में जो है जैसे किसी ने पोर कर दिया हो, उड़ेल दिया हो, इस तरह से वो म्यूज़िक जो है उसकी बॉडी में प्रवेश किया था। इट टिंगल इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों के एक एक कण में पूरा म्यूज़िक उसने अब्सॉर्ब कर लिया हो। When she plays the xylophone, और जब वो xylophone बजाती थी, जब वो हारमोनियम और पियानो बजाती थी, she can sense the sound passing up the stick into her finger strips. When she plays the xylophone, और जब वो xylophone बजाती थी, she can sense, तो वो सेंस लगा सकती थी, वो समझ सकती थी। क्या समझती थी? द साउंड पासिंग अप द स्टिक, कि वो जो साउंड है वो जो पास कर रहा है इनटू हर फिंगर टिप्स, उंगलियों से वो जो बजा रही है, तो वो उस म्यूज़िक को जो उंगलियों के ज़रिए
प्रवेश कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, वो उसको फील करती थी, समझती थी, सेंस लगाती। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और उस उंगलियों से जब वो ड्रम बजाती थी, शी कैन फील द रेसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो उस ड्रम से निकलने वाली जो वाइब्रेशन थी, वो वाइब्रेशन ऐसा लगता था उसकी बॉडी में प्रवेश कर रही है, और वो समझ रही है कि इस ड्रम से क्या आवाज़ निकल रही है, क्या ध्वनि निकल रही है, क्या म्यूज़िक निकल रहा है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और जब कोई प्लेटफॉर्म पैर रखने की जो जगह होती है किसी भी टेबल में, शी रिमूव्स हर शूज़, तो क्या करती थी, अपने जूतों को, अपने शूज़ को उतार देती थी, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर वेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो जब वो उतार देती थी और पैर रखने की जो जगह होती है वहाँ पे पैरों को, नंगे पाँव को रखती थी, और जब वो कुछ म्यूज़िक कुछ भी बजाती थी, तो वो जो वाइब्रेशन उस म्यूज़िक का वो उसके नंगे पाँव से होकर उसकी बॉडी में प्रवेश करता था और वो उसे फील करती थी। इस तरह का म्यूजिशियन जो संगीत को, जो म्यूज़िक को अपना जीवन बना ले, अपना एक एक लम्हा, अपना एक एक जो पल होता है उसका, वो उसमें निछावर कर दे, तब जाके वो मास्टरी मिलती है, तब जाके कुछ मिलता है। ऐसे ही नहीं किसी को कामयाबी मिल जाती है या कोई भी सक्सेसफुल हो जाता है। इट इज़ डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क एंड यू नो वेयर टू गो। जैसे कि एवलिन ने बताया कि आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है, तो आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि एवलिन अपने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मज़ा कराती थी। ये कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। नॉट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन को जो भी ऑडियंस सुनने जाती थी बड़ा मज़ा करती थी, खुश हो जाती थी एवलिन को सुनकर। इन 1991, 1991 की बात है, शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिहारमोनिक, ये अवार्ड का नेम है, रॉयल फिहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इस नाम का अवार्ड इसको, जो रॉयल लंदन का सबसे बड़ा अवार्ड था, रॉयल फिहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट, ये जो शब्द बना है वो सोलो से बना है। सोलो यानी अकेले की परफॉर्मेंस, खुद की परफॉर्मेंस को सोलो बोलते हैं, और सोलोइस्ट यानी ये ऐसा अवार्ड मिलने जा रहा है जो सिंगल पर्सन परफॉर्मेंस जो होती है उसके बेस पे दिया जाता है। ऑफ द ईयर अवार्ड इसको मिला, बेस्ट कैटेगरी का। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट, जो संगीत के पेशे में जो मास्टर थे, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, जेम्स ब्लेड्स उनका नाम था। क्या नाम था? जेम्स ब्लेड्स। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कहते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, उसकी सुनने की क्षमता छीन ली, वापस ले ली। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन सुनने की क्षमता तो छीन ली, उसके बदले में गॉड ने उसे कुछ ऐसा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोवाइड कराया, प्रदान किया, जिससे उसका मैच नहीं है। व्हाट वी हियर, हम जो सुनते हैं, शी फील्स, वो उसको महसूस करती है। जो हम अपने कानों से सुन रहे हैं वो उसको महसूस कर रहे हैं। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे ज़्यादा, हम जो कानों से सुनते हैं उससे ज़्यादा वो महसूस करती है, उस बात को फील करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुल्ली, और यही वजह है कि वो म्यूज़िक को इतने बेहतर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है, बता पाती है लोगों को और समझा पाती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians
but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is a nowhere that they cannot go. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do, I can also do. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. Let's explain this paragraph also. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. एवलिन अपनी किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सभा में इस बात को कन्फेस करती है. कन्फेस का मीन्स होता है स्वीकारना. इस बात को मानती है, किस बात को, दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि उसे काम करने में, जब उसने काम करना शुरू किया था तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो हुई थी, लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो फिर मैं रुकी नहीं और मैं थमी नहीं, क्योंकि जो रुकता नहीं, जो थमता नहीं, वही बनता है. जो रुक जाता है, थम जाता है, वो हमेशा के लिए थम जाता है, उसको सक्सेस नहीं मिल पाती है. सक्सेस उसी को मिलती है जो कॉन्टिन्यू वर्क करता है, हमेशा लगातार. प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. आप बार बार उस कार्य को करते रहिए, एक न एक दिन आपको सक्सेस मिल ही जाएगी. और आप रुक रुक के उस काम को करते हैं कि होना होगा तो हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है. जो होना है उसको करना पड़ता है, तब वो हो पाता है. आप ये कभी मत मानिए कि आपसे नहीं होगा, आप ये ठान लीजिए आपसे ही होगा. एवलिन ये कन्फेस करती है समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि वो उसने जब काम करना शुरू किया तो फिर वो रुकने वाली और थमने वाली नहीं थी. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क. मुझे बस काम करना था, मुझे बस आगे बढ़ना था. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. और अक्सर मुझे कठिन काम ही मिलता था. ऑफन हार्डर, हमेशा पहले से ज़्यादा कठिन. हम लोग को कोई कठिन कार्य मिलता है तो हम लोग रुक जाते हैं कि ये तो बहुत कठिन है. इसको क्या होता था, पहले से ज़्यादा. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते थे उससे भी ज़्यादा कठिन काम उसे मिल जाता था कई बार, लेकिन वो रुकती नहीं थी, वो उस कार्य को आगे करती जाती थी. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. जो काम मिलता था वो कठिन तो होता था, लेकिन उसके बाद जो रिवॉर्ड मिलता था, जो इनाम मिलता था, जो लोगों की शाबाशी, लोगों का सपोर्ट जो मिलता था, लोगों की सारी बातें जो मिलती थी, वो बहुत इनॉर्मस थी. मेरे लिए वही बहुत था, वही मेरे लिए इनाम था. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, और लगातार में हिस्सा बनी रहती थी. कंसर्ट आपने देखा होगा, जब म्यूज़िक का कोई भी प्रोग्राम होता है, बहुत सारी ऑडियंस बैठी होती है, बजाने वाले, ड्रम वाले, तबले वाले, हारमोनियम वाले, गिटार वाले, सब लोग जो है कंसर्ट करते हैं, ऑर्केस्ट्रा करते हैं. यानी उसका टिकट भी कई बार होता है और देखने के लिए लोग आते हैं और सुनते हैं, समझते हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, हमेशा ये हिस्सा बनी रहती थी. रेगुलर कंसर्ट, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंसर्ट होता रहता था. एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल.
कंसर्ट तो करती थी लगातार, लेकिन जब भी बात आती थी हॉस्पिटल की, जब भी बात आती थी जेल वगैरह की, जब भी बात आती थी प्रिजन की, कैदियों की, कैद की, तो ये फ्री कंसर्ट करते थे। हेल्पफुल बनिए लाइफ में, कहीं भी कभी भी कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाइए, लेकिन आप हमेशा अगर लोगों की हेल्प करते रहते हो तब आप महान बनते हो। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। कहाँ पर फ्री कंसर्ट करती थी? प्रिजन में और हॉस्पिटल में। यानी जो लोग खुद कमा नहीं सकते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके लिए, उनका मन बहलाने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ बोरिंग हो जाती है, हॉस्पिटल हो या जेल हो। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और हमेशा वो पहली पसंद बनी रही किन लोगों की? नौजवान जो संगीत सीखने वाले जो बच्चे थे, नौजवान जो बच्चियां थीं, उन सब की पहली पसंद एवलिन थी। और एवलिन भी उन लोगों को पहले प्रायोरिटी देती थी सिखाने के लिए। अगर कोई सीखने के लिए उसके जो भी एकेडमी या जो भी बने होंगे संस्थान, वहाँ पे सीखने वाले जो बच्चे होंगे उनको प्रायोरिटी देती थी, उनको सिखाती थी, समझाती थी। एन रिचलिन एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या था? एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रंस, जिसने हमेशा फंड रिलीज़ किया लोगों को, ऐसे लोगों को जो हमेशा से डीफ हुआ करते थे, पैरालिसिस हुआ करते थे, जो विकलांग हुआ करते थे। तो उनका नाम क्या था? एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन। जो बहरे बच्चे थे उनके लिए वो फंड प्रोवाइड कराते थे, उनकी मदद के लिए, हेल्प के लिए। कहते हैं, क्या कहते हैं? शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन। कौन? एवलिन। एन जो रिचलिन थे, एन रिचलिन कहते हैं कि एवलिन बच्चों के लिए, ये पूरे जहान के जो बहरे बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता वो महान बन गया, तो बाकी जो लोग हैं ना, जो नहीं सुन पाते, उनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। क्यों? क्योंकि जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी उस चीज़ को कर सकते हो। शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। बहरे बच्चों के लिए क्या थी? चमकदार सितारा, एक चमकता हुआ एक सितारा, जिसने के पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लिया हो। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। और वो लोग उसको देखकर ये महसूस करते थे, बहरे लोग, कि अब कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो वो कर ना सकते हो। हिम्मत मिलती है ना, हौसला मिलता है। जब कोई आपके जैसा व्यक्ति बहुत आगे जाता है तो फिर आपके अंदर भी ये बात आती है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब वो इतनी ऊंचाई तक जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो यानी फिर कोई भी ऐसा काम बचता नहीं है जो आप कर ना सको। बस मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया कि फर्म डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, पक्का इरादा। एक बार आप कर लें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप ना कर पाएँ। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दे कैन नॉट गो। तो वो लोग देखते हैं कि अब कोई भी ऐसी जगह बाकी नहीं है जहाँ पर वो जा ना सकते हों या पहुँच ना सकते हों। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी, पहले से ही इतना बड़ा नाम वो कमा चुकी थी, लोगों को इतना ज़्यादा कंपटीशन दे चुकी थी कि उससे दुगनी उम्र के लोग भी उसके बराबर नहीं थे। जो भी म्यूज़िक की दुनिया में जो लोग थे सब उसके दुगनी उम्र के लोग थे, जिन्होंने अपना नाम बनाया था, नाम कमाया था। उससे ज़्यादा नाम किसने कमा लिया था? उससे ज़्यादा नाम एवलिन ग्लैनी ने अपना नाम कर लिया था। शी हैज़ ब्रॉट अ परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ जो परक्यूशनिस्ट होते थे, यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते थे, जो अपने काम में महारत रखते थे, वो सिर्फ बजाते थे, पीछे बजाते थे, साइड से बजाते थे। यानी कि फ्रंट पर वो उन म्यूजिशियंस का कोई रोल नहीं था, उनका कोई नाम नहीं था। और फ्रंट पर लाने की जो प्रक्रिया है, फ्रंट पर पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, वो किसने शुरू की? वो एवलिन ने शुरू की। एवलिन ने
उन लोगों को भी हिम्मत और हौसला दिया जो लोग क्या थे, पीछे से, यानी पीछे रहते थे, वो पीछे रह जाते थे, उन लोगों के लिए भी ये एक प्रेरणा का स्रोत बनी। शी हैज़ ब्रॉड परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, यानी कि ऑर्केस्ट्रा जो बजता था उसके फ्रंट पर परक्यूशनिस्ट को, प्रोफेशनल्स को, म्यूजिशियंस को आगे लाने का काम, आगे बढ़ाने का काम, उनको सम्मान, इज्जत और हौसला बढ़ाने का काम एवलिन गिलेनी ने किया। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और इस बात को मनवा दिया, इस बात पर हावी हो गई कि ये चीज़ भी आपको आगे ले जा सकती है, ये चीज़ भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रोफेशनल्स के तरीके से आप काम कर रहे हो, लेकिन आप पीछे हट के, पीछे रहकर कभी आगे नहीं जा सकते। आपको आगे जाने के लिए आगे आना पड़ेगा, और आगे आने के लिए अपने कदम बढ़ाने होंगे, मेहनत करनी होगी, तब जाके आप आगे आ पाओगे। नहीं तो हमेशा पीछे की लाइन में लगे रहोगे और पीछे ही रह जाओगे। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, एवलिन गिलेनी ने उन लोगों को भी इंस्पायर किया, उन लोगों को, उनकी भी इंस्पायरेशन थी। टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो लोग विकलांग हुआ करते थे, जो लोग पैरालिसिस हुआ करते थे, किसी की आँख खराब, किसी की ज़बान खराब, किसी के कान खराब, किसी के हाथ खराब, किसी के पैर खराब, किसी भी तरीके से हैंडीकैप्ड, उन सब लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत, उन सब लोगों के लिए भी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सन जो उन लोगों को हौसला देगी, और वो लोग भी सोचेंगे कि मैं भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी उतनी हिम्मत और हौसला आ जाएगा। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जब वो हैंडीकैप्ड लोग, वो गूंगे लोग, वो बहरे लोग, वो अंधे लोग जब उसे सुनते थे, देखते थे, महसूस करते थे, तो वो कहते थे, क्या कहते थे, उनके अंदर भी एक ऊर्जा आ जाती थी, उनके अंदर भी एक ऊर्जा का स्रोत आ जाता था। क्या? इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। और क्या कहते थे, जब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब वो एक बहरी होके म्यूज़िक की दुनिया में अपना नाम कमा सकती है, तो हमारा तो कोई एक अंग खराब होगा तो हम किसी दूसरी भी चीज़ जो मुझे पसंद हो, जो मैं करना चाहता हूँ, तो हम उस फील्ड में अपना नाम क्यों नहीं कर सकते। तो एक हैंडीकैप में आ जाएगी, वो तो बहरी है। एक हैंडीकैप जो अपना नाम कमा सकता है, तो पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड के जितने भी हैंडीकैप्ड होंगे, जितने भी लोग होंगे या जो उसे जानते होंगे, सुनते होंगे, तो उनके अंदर भी एक ऊर्जा, एक चाहत, एक विश, एक इच्छा आ जाती होगी कि हम भी उस काम को कर सकते हैं, हम भी अपना नाम बना सकते हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। और वो हमेशा कहते थे, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, और ये सिर्फ कम से कम की बात नहीं है, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन। सिर्फ इसकी बात नहीं है कि वो सिर्फ बहरों को या गूंगों को या लंगड़ों को या जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थी, और उन्हीं के लिए ही वो जो है सिर्फ एक नाम था संसार में, बल्कि उनके साथ साथ उसने इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस पीपल, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों को बहुत आनंद दिया है अपनी म्यूज़िक से, अपने संगीत से, और अपने जो उसके अंदर टैलेंट था उस टैलेंट से। सिर्फ उसने लंगड़ों को नहीं, सिर्फ उसने हैंडीकैप्ड को नहीं, बल्कि पूरे संसार के लाखों, करोड़ों लोगों को अपनी म्यूज़िक से आनंद दिया और अपना नाम पूरे संसार में बनाया एवलिन गिलेनी ने। और लेकिन एवलिन गिलेनी को आगे पहुंचाने का जो श्रेय है वो जाता है रॉन फॉब्स को। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, उसको आगे ले जाने का, आगे पहुंचाने का जो श्रेय है वो जाता है रॉन फॉब्स को। क्योंकि सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज कर दिया था, लेकिन रॉन फॉब्स ने उसके अंदर के टैलेंट को पहचाना था, उसके सामने 2 ड्रम रख दिए थे, और उस ड्रम से, उस तबलों से ही उसके जीवन में जो बदलाव आया वहाँ से शुरू हो गया था।
That's end of the topic as well as that's end of the chapter today. That is finishing the chapter. Name is Evelyn Glennie. Listen to the sound. In the next video, we will learn the second part of second chapter is the Shehnai of Bismillah Khan. Till then, goodbye. Take care of yourself. I hope you like the video. If you have any problem, comment in the comment box. And if you have time, you can come in the school to discuss this topic also. Goodbye.